Yes, all of you please listen. Yesterday we were doing this part. एक तो चीज है जो एरर यहाँ पे आ रहा था, w.dwork parameterized thread size. हाँ, ये एरर आ रहा था ना इधर, उस एरर को दूर करने के लिए वर्कर क्लास में जहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा है ना, यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन मार्क डाल दो. So this question mark, why this question mark? I will explain this. This prevents the nullable values. तो अभी देखो वो एरर चला जाएगा. That is one error we were getting again and again, right? तो बैंक ऑपरेशन में भी मैंने यहाँ पर देखो जहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लिया उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाया. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट बट वी हैव टू डू दिस वन. एक तो वो चीज हो गई. दूसरा, जब हम कल लॉक लगा रहे थे, आई वॉज पुटिंग अ लॉक ऑन बैलेंस. रिमेम्बर, मैंने बैलेंस पे लॉक लगाया था. So the problem is you should not be locking a particular variable. This is a variable inside the object, right? So basically we need to lock the current object जिस पे ये काम हो रहा है. मतलब हम अकाउंट यहाँ पर yes, so bank operations BOP, this is the current object. So BOP dot deposit, BOP ऑब्जेक्ट है जिसको अपने को लॉक करना है. अंडरस्टूड? The current object which is holding the data, that entire object needs to be locked, not this particular value within that object. Okay, so that is why here what you have to write is monitor dot enter this. This means the, you know, right, this refers to the current object. So current object को lock किया, current object को exit किया. So what does this mean? Suppose we have some here we created an object, this object, right? BOP is the object. So let's say this is maybe 100 and here we are creating this balance, etc. So when you call, when you are writing the thread, right, t1 dot start जैसे हमने कॉल किया, तो वो क्या करता है, bop dot deposit method को कॉल करता है. So when this method is called, right, so this parameter will be created, this will be holding 100 because address of the current object is 100. So here we have to acquire the lock on this. इसको हम लॉक कर रहे हैं. So for locking this we use monitor dot enter and we pass this object. इससे क्या होता है, ये लॉक अक्वायर होता है. बाद में हम उसको क्या लिखते हैं, monitor dot exit in order to release the lock. This point everybody is understanding? Just 1 minute. Huh? So monitor dot enter is used to acquire the lock and monitor dot exit is used to release the lock. That is one thing. So this part is used to and this is used to release the lock. Okay. Now the point is it possible? Okay. So first let me execute this code that we discussed in our yesterday's session. अभी आप फ्लो देखो, यहाँ पे बैंक ऑपरेशन आया, हमने इनिशियलाइज किया कितना, 5000. नाउ वी आर गोइंग फॉर द थ्रेड स्टार्ट डेलीगेट, दैट इज डिपॉजिट मेथड एंड विड्रॉल मेथड. t1 dot start, so which method will be called internally? Sorry, thread t1 and t2 are created. When we say t1 dot start 1000, so which method will be called in this case? Deposit method will be called. Correct. So deposit कितना हुआ, 1000. So 5000 plus 1000 is 6000. But it has acquired the lock.
So even when you say start this one, it will not be able to execute because the other thread has acquired the lock. जब भी वो release होगा तब कौन सा method call होगा? Withdraw method call होगा. Correct है? So now the withdraw method will be called. So 5,000 plus 1,000 is 6,000. 6,000 minus 500 is how much? 5,500. So let's execute this code. Can you see the result, everyone? Is it correct result? Suppose I change the sequence here. That means first I am performing withdrawal followed by deposit. So कितना होगा? 5,000 minus 500 is 4,500 plus 1,000 is again 5,500. Okay, everybody. So no matter how you execute now, always you will get the correct result. ठीक है? समझ में आया सबको? Yesterday we did that, right? Without that monitor dot enter, monitor dot exit, it was not giving us the perfect result. Now, the problem with this monitor dot the problem with this approach is, can we put both in the same thread? Which one? T1. कौन सा बोल रहा हूँ? Two delegates. Two delegates you want to attach with the same thread? Yes, you can. But then what will happen? अभी समझो मैं एक थ्रेड हूँ, तुमने मुझे टास्क 1 दिया और टास्क 2 दिया है, तो मैं ऑब्वियसली आई विल एग्जीक्यूट द टास्क 1 फॉलोड बाय टास्क 2. अंडरस्टूड मनोज? देन इट विल नॉट बी मल्टी थ्रेडिंग, इट विल बी सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन. मतलब वो 1 by 1 ही रन होगा. I will do that. First let me just complete this. I will do what you are saying also. That is possible. But उससे कुछ अपने को benefit नहीं होगा मल्टी थ्रेडिंग का. हाँ, तो अगर आपने monitor dot enter लिखा है, maybe I can forget writing monitor dot exit. Possible है? When I acquire the lock, I should release it. You are telling me to release it. But what if I forget it? तो क्या होगा? Just imagine, I took a lock on the resource, but I forgot to release. Then what is going to happen? It will lock itself. It will lock itself. नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ने देगा. मतलब मेरे पास ही रिसोर्स है ना, तो मेरा काम तो हो गया. But the other person will keep on waiting because that person is waiting. हाँ, no other thread will be allowed. Correct. So if I execute this, so you may see that it will not give us the result क्योंकि वो ब्लॉक हो गया है. दूसरा वाला थ्रेड को एंट्री नहीं. हाँ, 5,500 आंसर कैसे आया? दिस इज सरप्राइजिंग. शायद वो टाइम बाउंड है क्या? एक मिनट. We have written here John. Ideally speaking, it should not allow the other thread to enter and it should be blocked, but
It is still running, so let me just cross check. मतलब actually ये block होना चाहिए था, but this is one problem. Suppose we write monitor.exit and we forget to call monitor.exit, then maybe some problem might occur. So we have another solution to this, that we use the lock mechanism. Lock this के साथ आप just you use a pair of curly braces and you put this entire code over here. समझ में आ रहा है? Just write here lock and you pass the object and you put it inside this block. So the moment the curly bracket closes, the lock is automatically released. आ रहा है समझ में? So here also I will replace it. This is actually a better option. So we use lock on this. Got it, everyone? So this is another option that we can use instead of monitor.exit or monitor.enter. सीधे सीधे लॉक कीवर्ड यूज किया तो वो पूरा जो ब्लॉक होता है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है. So this entire block is synchronized. Is that okay, everyone? This part? ये मैं एक बार monitor.exit का क्रॉस चेक करती हूँ. हाँ, ये एक्चुअली रन नहीं होना चाहिए था, बट आई विल जस्ट क्रॉस चेक. So this was all about multi-threading. So now it is doubt clearing time. So what is some issues you have? So you may tell me what is the problem. Yes, Manoj, you may unmute and ask. मैम वो असाइनमेंट 2 में जो एक्सेप्ट मेथड है वो क्या है? एक्सेप्ट मतलब यूजर से इनपुट लेना है. नहीं, उसको हम पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना. एक मिनट, मैं ओपन करती हूँ. कहाँ पर मैंने स्टार्ट किया? डेडलॉक ये नहीं है श्रेयस, इसको स्टारवेशन बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन डेडलॉक. 1 मिनट. देयर इज अ क्लास स्टूडेंट. ओके, सो स्टूडेंट इज एक्सेप्टिंग. स्टूडेंट के पास क्या है? स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, परसेंटेज. नाउ देयर इज वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये अलग बनेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है. डिस्प्ले मेथड. एक मिनट. ये जो, हाँ ये देखो मैंने बनाया, देखो एक्सेप्ट डेटा मेथड. ये यूजर से इनपुट लेने के लिए है. अच्छा, सही है मैम, ठीक है. ओके मैम, अंडरस्टूड. और मैम ये जो है मेथड टू कैलकुलेट रैंक, हाँ व्हाट इज दैट? हाँ, रैंक मतलब ये जैसे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ऐसा वो रैंक है. ओके ओके मैम. तो यहाँ पर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, और आगे जाके जैसे इंटरनल मार्क्स है तो इंटरनल मार्क्स विल बी एडेड टू द ओरिजिनल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, और उस पे से हम लोग उसका रैंक कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो बिजनेस लॉजिक कुछ भी लिखो, दैट इज फाइन. मेरे को मेन है कि आप ओवरराइडिंग कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज व्हाट आई वांट टू से. यस मैम, यस, थैंक यू. यस. बाकी ये वाला असाइनमेंट सबको क्लियर है? Assignment number 2 is clear to everyone. Regarding third assignment, do we have to store employee details in employee reference array? हाँ, array भी है, और एक और चीज अभी पढ़ा देती हूँ मैं ध्यानेश्वर. array list भी एक कॉन्सेप्ट, एक्चुअली मुझे कलेक्शंस भी लेना था, तो वो कल देखती हूँ. कल एक्स्ट्रा टाइम बनेगा ना तो कलेक्शंस लेती हूँ टॉपिक एक और. बट टुडे आई विल टीच यू array list कॉन्सेप्ट. तो array list से थोड़ा इजी हो जाए. आई वाज गेटिंग एरर. कैन यू शेयर द स्क्रीन?
लेट मी स्टॉप स्क्रीन। मैम मल्टी थ्रेडिंग में लॉक लगाने के बाद ज्वाइन कॉल करने का नहीं है लॉक। वेट श्रेयस, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट। अभी मैं मल्टी थ्रेडिंग वाला जो तुमने पूछा है ना 2-3 पॉइंट्स, वो एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट आई विल जस्ट क्लियर द डाउट विच ज्ञानेश्वर हैज आस्क्ड। Yes, Dhaneshwar, can you please share the screen? क्या हुआ, दिख रहा था स्क्रीन ज्ञानेश्वर? शो मी द कंपनी क्लास। ये तो एम्प्लॉय क्लास है ना। अच्छा, इसी में अलग फाइल बनाना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए अलग फाइल बनाओ और कंपनी के लिए अलग फाइल बनाओ। डोंट क्रिएट वन फाइल। मैंने कैसे फॉलो किया वैसे तुम लोग भी फॉलो करो, ठीक है। सेपरेट फाइल फॉर सेपरेट क्लास। एनीवेज यू डू इट लेटर, 1 minute। कंपनी क्लास, कंपनी पब्लिक, साइज एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। हाँ नहीं, ये गलत है कोड, ठीक है। एक काम करोगे क्या तुम, ये कोड मुझे चैट बॉक्स में सेंड करो, कॉपी करो और चैट बॉक्स में सेंड करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Yes, everyone, please focus here. If you all remember what I explained you, when you write like this, what is this? यहाँ पर employees क्या बन रहा है? Reference. And what is this? It is not object. It is array of references. मैंने वो शायद बोला भी था, रुको कहाँ पे मैंने सिखाया वो मुझे ओपन करना है। Can you see this? I have commented this part. This is reference of employee array and this is array of employee references, not objects. Understood Dhyaneshwar and Manoj? ये मैंने बोला था। आप देखो, हर हर रेफरेंस के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू लिखना ही पड़ेगा। देन ओनली द न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके ज्ञानेश्वर? तो अभी मेमोरी एलोकेशन लेवल पर अगर आप समझो, so how it is going to be, see here. So here we have employees, suppose. Now when you write here 100, so here whatever size, suppose size is 5. So you get 5 references created here. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 references. पर ये क्या है, ये 5 एम्प्लॉय का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हो ज्ञानेश्वर? अगर आपको यहाँ एम्प्लॉय स्टोर करना है ना, तो न्यू कीवर्ड लेके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इधर न्यू कीवर्ड लेके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब तुम उसमें डेटा पास करोगे। समझ में आ रहा है? तो तुमने क्या किया है, देखो उस रेफरेंस के ऊपर तुमने स्क्वायर ब्रैकेट आई ऐसे लिख दिया, इसलिए वो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। अब तुम एक काम करो, ये कोड जो है ना, देखो इसको कमेंट करो, सबको कमेंट करो, जस्ट यू राइट हियर
इसको एंटर करोगे तुम, जस्ट हिट एंटर ओवर हियर एंड हियर यू विल टाइप एम्प्लॉइज स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय जो भी तुमने बनाया है, एम्प्लॉय, एंड नाउ यू नीड द कंस्ट्रक्टर। तो 101 सपोज अजय एंड देयर इज अ सैलरी, मान लीजिए ऐसा किया हमने। आर यू गेटिंग दिस? मैम ये एम्प्लॉय एरे समझा नहीं था, मीन्स एम्प्लॉय क्लास का ओनली एम्प्लॉय नाम एरे बना, ऐसा है क्या? देखो मैं फिर से बता रही हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंटेंशन इज टू क्रिएट द एरे ऑफ एम्प्लॉयज, करेक्ट? हमारा इंटेंशन क्या है, हमको एम्प्लॉयज का एरे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? डेटा टाइप क्या होगा? एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉय स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्लॉय, सिर्फ इतना इतना चीज को देखो। व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड हियर? द रेफरेंस ऑफ एरे, रेफरेंस ऑफ एरे इज क्रिएटेड। ये पार्ट क्लियर है वैष्णवी? तो ये लिखने से सिर्फ ये पार्ट होता है, ओनली दिस मच इज देयर। देन यू राइट न्यू एम्प्लॉय साइज ब्लॉक इज क्रिएटेड। मतलब ये वाला सेक्शन जो है, इसको अगर मैं 1 लिखूं और ये वाले सेक्शन को अगर मैं 2 लिखूं, so this is 1 part, this is 2 part, this is clear? So here please understand, employee object is not created, यहाँ पर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ओके तो ये क्या बना है? देन व्हाट इज क्रिएटेड? whatever size you have mentioned, for example 5, so 5 references of employee E1 E2 E3, मतलब आप ऐसे समझ लो कि मैंने क्या लिखा है, EMP E1 E2 E3 E4 E5, ऐसे आप समझ लो। these are all references in C sharp. if you want to create object you have to write here new। याद है मैंने उस दिन बोला था ये सिंपल ब्रैकेट जब तक नहीं दिखेगा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना है, स्क्वायर ब्रैकेट से ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, आपको सिंपल ब्रैकेट जब तक नहीं लगाया ऑब्जेक्ट, देखो ये इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन किया है, दिख रहा है? ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सो स्क्वायर ब्रैकेट से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इट इज क्रिएटिंग जस्ट द रेफरेंसेस ऑफ एम्प्लॉय। देयर आर 3 रेफरेंसेस ऑफ एम्प्लॉय, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस। यूजिंग द फर्स्ट रेफरेंस क्रिएट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन द सेकंड ऑब्जेक्ट, देन द थर्ड ऑब्जेक्ट। अभी आ रहा है समझ में ज्ञानेश्वर? मिस्टेक क्लियर हुआ? तो जब तुम वैल्यू पास करोगे ना तो नया ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसमें वो एज अ पैरामीटर पास कर लो। दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन दैट यू कैन हैव। ठीक है? यस, एनीथिंग एल्स? ये आज ही करो, हाँ, फिर नहीं होगा तो कल मुझे बताना, तो मैं कल फिर से वो सॉल्व करके दिखाऊंगी क्लास में। एवरीवन टू डू दिस असाइनमेंट टुडे इटसेल्फ। यस मनोज। तो मैम यहाँ पे ये जो प्रोग्रामर है यहाँ पे सबका तो मतलब ईएमपी का ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना? यहाँ क्योंकि पे रेफरेंस एम्प्लॉय का है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर का है, या फिर सेल्स मैनेजर का है, एडमिन का है, बिकॉज प्रोग्रामर इज एन एम्प्लॉय, सेल्स मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, एडमिन इज एन एम्प्लॉय। रेफरेंस बेस्ड क्लास का है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है। नहीं नहीं, मैं असाइनमेंट का बात कर रहा हूँ क्योंकि हाँ वहां पे तो साइज एंट्री हो रहा है, हाँ तो उधर एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना? हाँ, मैंने क्या बोला था उस दिन, तो वही करो, एम्प्लॉय का ही बनाओ, हाँ फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट हाँ, मत ले लो, यस। लेकिन देन डोंट मेक द एम्प्लॉय क्लास एब्स्ट्रैक्ट। ओके, यस यस। एब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, है ना? हम्म। सो कीप इट सिंपल, हम लोग ये भी कर सकते हैं लेकिन जाने दो, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो अभी के लिए सिंपल रखो, जस्ट क्रिएट द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, मेक श्योर यू डोंट हैव इट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, वो ध्यान में रखो, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। यस, एनी अदर डाउट? No doubt, all clear, everybody is comfortable?
अभी तक जो पढ़ा रही हूँ सब कंफर्टेबल है, सबको समझ में आ रहा है? किसने किसने अभी तक जो पढ़ा है सब कुछ इम्प्लीमेंट किया है? असाइनमेंट का जाने दो, बट वट एवर सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे मनोज? whoever has implemented, अभी तक मैंने जो भी सिखाया सब कुछ जिसका इम्प्लीमेंट करके हुआ है वो डी फॉर डन टाइप करो, या फिर जहां तक हुआ है वो टाइप करो टॉपिक। हाँ मनोज, पाइथन से सी शार्प में आएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 1 हफ्ते में लेकिन तुम सेट हो जाओगे, डोंट वरी। बट आर यस यू मैम। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं, या वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर सिंटैक्स में, तो मुझे पूछो। मैम थोड़ा वो प्रॉपर्टी डेलीगेट में इशू हो रहा है मेरा, ये दोनों चीज में। सॉरी, फिर से रिपीट करो। मैम प्रॉपर्टी और डेलीगेट में हाँ, थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन हाँ करती हाँ। हूँ फिर से। ओके, और कुछ पॉइंट? एनीबॉडी? हाँ, किसी को भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक लग रहा है कि मुझे रिपीट करना चाहिए तो बोलो। और आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन द चैट बॉक्स फ्रॉम एवरीवन। अगर जितना अभी तक मैंने सिखाया है वो कंप्लीट किया है तो डी फॉर डन टाइप करो। असाइनमेंट को छोड़ दो, मैं असाइनमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। वट एवर आई हैव टॉट इन द क्लास दैट आई एम आस्किंग, इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग। मैम इवेंट एंड इंडेक्सर नहीं समझा है, ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन दैट। और बाकी सब इम्प्लीमेंट हो गया? डेलीगेट्स, ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट। टिल डेलीगेट हो गया, ओके। सेम मैम, जस्ट इंडेक्सर, इंडेक्सर पेंडिंग है, ऐसा बोल रहे हो ज्ञानेश्वर? टिल डेलीगेट्स एंड इवेंट्स हो गया, ओके फाइन। टिल इवेंट्स इन डेलीगेट्स, ओके फाइन। तो अभी आज के दिन सब कंप्लीट कर लो, है ना? इंडेक्सर में ग्रिप नहीं मिला है, ठीक है, ग्रिप लाएंगे हम, डोंट वरी। हम पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है, डोंट वरी। So wait a minute, let me have a new file for today. ऐसे पूछा करो, हाँ, दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, ठीक है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बीइंग अ ट्रेनर वी जस्ट गो अहेड विद सम अजम्पशन, राइट? आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे बोल के हमारी गाड़ी आगे बढ़ते जाती है। तो तुमको पूछना है जहाँ पे नहीं समझ में आया, सो डोंट लेट मी मूव फॉरवर्ड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज टेक इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? Okay, first I will clarify the doubt that was asked by Shreyas about multi-threading. So all of you please focus here. Suppose we have 3 threads, ठीक है? मेरे पास, या चलो 2 threads हैं, T1 एक thread है, T2 एक thread है, and there are 2 resources I have. So there is a resource R1 and there is another resource R2. Now let's say T1 is holding a resource R1 and T2 is holding the resource R2. At the same time, T1 wants to acquire the resource R2. That means T1 is requesting for R2, and at the same time T2 is requesting for R1. अब T1 बोलता है कि let's say T1 wants to write to the file using this file. समझो ये R1 R2 मतलब फाइल 1 फाइल 2 है, तो T1 इस फाइल में राइट करना चाहता है और वो रीड करना चाहता है R2 से, और T2 इस फाइल पे राइट कर रहा है और वो रीड करना चाहता है R1 से। मे बी जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। So in order to accomplish the task, T1 needs both R1 and R2. Similarly, T2 also needs both R1 and R2, दोनों चाहिए। तो T1 ने क्या किया, रिसोर्स R1 को लॉक कर दिया है, and it is making a request for R2, which is in turn locked by R2, suppose. तो T2 भी R1 के लिए वेट करेगा और अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, T1 भी R2 के लिए वेट करेगा और अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। So what is going to happen? T1 is also waiting, T2 is also waiting. So in turn nobody is doing anything. सब लोग लॉक हो गए हैं. This condition is known as deadlock. Is it clear? श्रेयस, ये डेडलॉक समझ में आ रहा है आपको? हाँ, लेकिन अभी का जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि समझो T1 है,
T1 is holding a resource R1 and it has acquired a lock on this resource R1. T2 is holding R2 and it is waiting for R1, but T1 is not releasing R1 even though it has finished. So T1 का काम हो रहा है ना, T1 is moving ahead. So the system is not in deadlock state. But who is being affected? T2. T2 को काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है. This is known as starvation. अभी जो हमने डिस्कस किया वो स्टारवेशन है, क्योंकि कुछ लोगों का काम हो रहा है, कुछ लोग ब्लॉक हो गए हैं. दैट इज स्टारवेशन. सम थ्रेड्स आर ब्लॉक. दैट इज अ स्टारवेशन कंडीशन. इज इट क्लियर? सो मल्टी थ्रेडिंग पार्ट अभी तुम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो कल तुम्हें डाउट्स आएंगे, है ना? तो आज इतना समझ में आया है तो ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं. हाँ, अभी सबने प्रॉपर्टी, पहले मैं प्रॉपर्टी पढ़ाती हूँ, फिर इंडेक्सर पढ़ाती हूँ, फिर इवेंट्स और डेलीगेट्स पे आती हूँ. ठीक है? सो लेट मी हैव अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर टुडे. Yes. So what I have done, I have used a student class. So here we are having age, name, percentage, integer count था उसको मैं हटा देती हूँ, अभी अपने को नहीं चाहिए. There is a default constructor and we have a parameterized constructor as well. There is an accept data method which will accept input from the user. Display count भी हटा देती हूँ. ठीक है, एक सिंपल क्लास अभी हमने लिया है. I think so everything is fine. Extra bracket है क्या? All good everyone? All good? Clear है ये? अब आ जाते हैं मेन मेथड में. Just 1 minute. Okay. Now let's create the object of student and let's use a parameterized constructor. ये इसको क्लिक करोगे ना, दूसरा वाला पैरामीटर दिखाई देगा आपको. So let's say the age of the student is 23, name of the student is say Akshay, and the percentage is suppose 67. This is the data that we have for the student. Now after this I want to change the percentage. Let's say no, his percentage is not 67, his percentage is something else. So if I write here s1 dot and I want to change the percentage, is it possible to change the percentage from here?
So you can see error because it is inaccessible due to the protection level. It is private data member. And we don't want anybody to access the private data because that is going to affect the security. So we'll keep it as it is. So what we do, we go to the student class, and for this private data, we create something that is called as a getter setter method. एक होता है getter method, एक होता है setter method. Getter method get करने के लिए, setter method set करने के लिए. तो ये डबल परसेंटेज है. तो कैसे लिखना है getter? वी आर ट्राइंग टू गेट दिस वैल्यू, राइट? ये हमको गेट करना है, तो अभी उसके लिए क्या लिखेंगे? गेट परसेंटेज, ये अपने को लेना है. ठीक है, तो गेट परसेंटेज एक्चुअली क्या करने वाला है? वाई वी आर यूजिंग गेट? बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट दैट वैल्यू. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? रिटर्न डबल, सॉरी रिटर्न परसेंटेज. तो जो परसेंटेज, गेट परसेंटेज मतलब मैं बोलूँ गेट मुझे दे दो, क्या दे दो? परसेंटेज दे दो. दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग. So what is the data type of percentage? Double. So the return type of this method will be double. Understood? ये हो गया get के लिए. Set कैसे होगा? Set में हम void लिखेंगे, मतलब we are not expecting anything, but we are setting the percentage. So we have to pass double D. तो हम क्या लिखेंगे? Percentage is equal to D. So we are setting the value. तो एक हो गया getter और एक हो गया setter. This part is okay everybody? अभी ये syntax clear है मनोज? Everybody is okay with the getter setter part? So let me go to this section and I create the getter setter for percentage. So how we do that? And make sure it should be public, right? So public double get percentage. So return percentage. Similarly, public void set percentage. So here we will have to assign the value to the percentage. ये set percentage हो गई. तो ये getter setter method हमने लिख दिया है. अब coming back, now we can say s1 dot set percentage, and now I want to say ये मैंने 67 नहीं 76 करना था. And then if I say s1 dot display, I should see the modified output. So you may see now the output is showing here by 76. Is it okay? So this is normal getter setter. ठीक है, अब अगर मैं एक और चीज करती हूँ, लेट्स मेक दिस परसेंटेज इटसेल्फ पब्लिक. चलो अभी इसको पब्लिक बना दिया हमने. So will I not be able to write directly s1 dot percentage is equal to whatever? And now let's observe the output. You can see the modified output 77. तो public लिखा तो directly accessible हो रहा है. Now compare the syntax for this one and this one. अगर मैं आपसे पूछूं easy कौन सा है, सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा कि easy कौन सा लगता है आपको? This one is the first one, this one is the second one. So obviously the second one appears to be easy. But just because it is easy, we have some security issues also. कोई गलती से उसको -88 भी कर सकता है. So security is the problem. So I want it to be as user friendly like this. मतलब ये दिखने में ऐसा दिखे लेकिन काम वो सेट परसेंटेज जैसा करे. दोनों बेनिफिट चाहिए मुझे.
I want the benefits of getter setter plus appearance wise it should appear like public. That is my requirement. ठीक है, दोनों चाहिए अपने को. That is where we use the property concept. ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? दिखने में वो ऐसा दिखे लेकिन काम वो इसके जैसा करे कि अगर -88 किया है तो वो नहीं करने देगा, अपने को स्टॉप करेगा कि नहीं दिस इज नॉट अलाउड. सो वी वांट इट लाइक दिस. तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे. प्रॉपर्टी कैसे बनाना है, किसके लिए बना रहे हैं, परसेंटेज के लिए. सो व्हाट यू विल डू, पब्लिक डबल डेटा टाइप लिखना है एंड किसके लिए प्रॉपर्टी बना रहा है, परसेंटेज के लिए. तो उसके लिए कुछ तो नाम सोच लो, एनी नेम. सो जनरली वी यूज a capital letter so that is easy for us to understand and remember. Get for getter and set for setter. Simple. Get क्या करता है, रिटर्न करता है परसेंटेज को. सेट क्या करता है, परसेंटेज की वैल्यू को सेट करता है. परसेंटेज, लेकिन क्या लिखना है, यू हैव टू यूज वैल्यू कीवर्ड हियर. ऑलवेज यू हैव टू यूज द वैल्यू कीवर्ड. तो ये देखो ना, ये जो हमने कोड लिखा था उससे तो डेफिनेटली ये ज्यादा इजी सिंपल है ना. बस यहाँ पे एक नाम आपको सोचना है. whatever name you find convenient, just think about that name. और उसके अंदर हमने क्या लिखा, get simple brackets, set simple brackets, no sorry क्या curly bracket, no simple bracket. And then we are saying return percentage, percentage is equal to value, ऐसा लिखा हमने. Is it clear everyone? So the moment you, हाँ, तो अभी सेट करते समय हम यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं. If percentage is greater than 0 then only you apply this. नहीं तो उसको चेंज मत करो, डोंट सेट इट. ऐसा हमने कंडीशन लगा दिया. सो नाउ लेट्स रिमूव दिस. S1 डॉट परसेंटेज is equal to, suppose I write here -90 and then I call the display method. So you see the output now. अरे उसने सेट किया, 1 minute. If it is greater than 0, value -1. So -1 is not less greater than 0 ना. If it is greater, then assign. Otherwise, don't assign. That is what we are saying. तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो वो कैसे असाइन हो सकता है, 1 minute. Let's put a breakpoint and we will use debugging option. यहाँ पे आप माउस लेके आओगे ना तो वैल्यू वो दिखाता है 67. ओ समझ में आया क्या प्रॉब्लम है. आई वॉज कंपेयरिंग विथ परसेंटेज. वी हैव टू कंपेयर विथ वैल्यू. वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं ना, तो वैल्यू को चेक करना है. शायद ज्ञानेश्वर ने वो बोला भी. अंडरस्टूड द मिस्टेक I was comparing with percentage. तो percentage तो 67 ही है ना. Debugging से देखो कितना फायदा होता है. So let's do the debugging again. Now I press F11. Now you bring your mouse over here. Can you see value coming up as 90, -90? तो अब वो इधर नहीं जाएगा. It came back. Okay.
So now if you want to see the output, वो डिबगिंग हो गया ना, आउटपुट देखना है तो ये देखो 67 ही है, अभी वो चेंज नहीं हो गया. But if you provide it as 90, then it will be changed because it is a positive number. ठीक है? Everybody is okay till this point? ये प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है? अब इससे मिलता जुलता सिंटैक्स है किसका? इंडेक्सर का. अब इंडेक्सर में क्या होता है? See, we saw the array concept. So when we are using the array, we are using the square bracket, correct? So what does the square bracket indicate? It is usually used for the, what do you say, इंडेक्स के लिए यूज होता है. तो अगर मैंने यहाँ पर S1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखा, इज S1 एन एरे राइट नाउ? नो. बट आई वांट कि हाँ, अगर मैं 0 लिखूं तो तुम मुझे आईडी दे दो ना. अगर मैं 1 लिखूं तो मुझे नेम दे दो, और अगर मैं 2 लिखूं तो मुझे उसका परसेंटेज दे दो. सपोज आई वांट टू इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ज्ञानेश्वर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हूँ? अभी S1 एरे नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम ये यूज कर पाए. अगर S1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखा मैंने, तो मुझे तुम क्या दे दोगे? जो पहला डेटा है उसमें क्या, कौन सा है? आईडी. तो आईडी या एज है, सॉरी, सो इट शुड रिटर्न द एज. सपोज आई राइट S1 स्क्वायर ब्रैकेट 1, so it should give me the name and so on. That is our requirement, suppose. तो उसके लिए इंडेक्सर यूज करते हैं. सो इंडेक्सर प्रोवाइड्स अस अ फैसिलिटी फॉर अप्लाइंग द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोलते हैं. So wherever you want, you can apply the subscript operator. That is one point. ये point सबको समझ में आ रहा है? कहीं भी तुमको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं. First tell me, are all of you are understanding what is the purpose of that indexer? वो पहले समझ में आएगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आएगा. ठीक है? सो गोइंग बैक टू द स्टूडेंट क्लास. अब उसका जो सिंटैक्स है वो बहुत कुछ प्रॉपर्टी जैसा ही है. नाउ in this example we have different data types, right? We have, let's not make it public because we'll not do that. Now here we have the first one as integer, second one as name, third one as double string है, sorry. तो मुझे इंडेक्सर किस डेटा टाइप का बनाना चाहिए? Which will be applicable to all. Very good, super. स्टूडेंट नहीं मनोज. स्टूडेंट के अंदर है ना ये. स्टूडेंट कैसे एज और स्ट्रिंग और डबल पे एप्लीकेबल होगा? तो हम लोग क्या, कौन सा लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे. तो ऑब्जेक्ट, इंटीजर इज एन ऑब्जेक्ट, यस. स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, यस. डबल इज एन ऑब्जेक्ट, यस. तो डबल डेटा टाइप लेंगे तो सब पे काम करेगा. समझ में आ रहा है सबको? सो पब्लिक data type is object, and we have to use this keyword here, and in the square bracket here I am writing index. So we use this keyword to create the indexer. पर डेटा टाइप में मैंने क्या ले लिया है? ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर ये दोनों मेथड्स आएंगे, एक आएगा गेट और दूसरा आएगा सेट. समझ रहे हो? चलो अभी फिलहाल गेट पे फोकस करते हैं. लेट्स फोकस ऑन गेट फॉर द टाइम बिंग. सो मैम, ऑब्जेक्ट कीवर्ड रिप्रेजेंट्स एनी डेटा टाइप. एक मिनट. Every data type is inherited from object. Okay, Janeshwar?
Integer is inherited from object, string is inherited from object, double is inherited from object, every data type is inherited from object. Okay, चाहे वो कोई भी data type होगा, int is an object, string is an object, double is an object, like that. तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है object x is equal to 10, so 10 we are storing in x, child class we are storing in parent, allowed है? हाँ allowed है. X is equal to hello, that is also allowed. X is equal to E1 is also allowed. Everything is an object. समझ में आ रहा है ध्यानेश्वर? Because that is a parent class for any class, any data type. तो इसलिए उसमें कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं. फिर जब उसको एक्चुअल यूज करना होगा तो डाउनकास्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x लिखा है ना मैंने, अगर वो इंटीजर है तो उसको डाउनकास्ट किस में करेंगे हम? इंटीजर पे. इज दैट क्लियर? हाँ, ये होने के बाद ना एक और पॉइंट है, याद आया मुझे, वो मुझे याद दिला देना. बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग एक कॉन्सेप्ट होता है. I will have to explain that. So just remind me first. Let me just complete this indexer part. मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? Okay. So everybody understood? Get method क्या करेगा मुझे बताओ? अगर समझो इंडेक्स की वैल्यू 0 हुई, so what it should return? Age. Very good. So let's write here. If index equal to 0, then what you are going to return? Return age. My return type is an object and I am returning an age. That is an integer data type. चलेगा नहीं चलेगा? तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने एज दिया, चलेगा? हाँ चलेगा, परफेक्टली चलेगा. Else index equal to 1, then we are saying return name. Else actually और एक लगाने से अच्छा अपन बोल देते हैं return percentage. ये सब मुझे बताओ, ये सबको समझ में आ रहा है गेट मेथड? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? So what this method is returning? ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है. आपने रिटर्न किया एज या फिर नेम या फिर परसेंटेज, पर उसको तो पता नहीं है ना, वो कैसे ट्रीट करेगा उसको? एज एन ऑब्जेक्ट. सो हियर एज विल बी अपकास्टिंग हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? हियर अपकास्टिंग विल हैपन. रिमेंबर अपकास्टिंग याद है क्या सबको कि भूल गए? Let me write it again. Employee E1 is equal to new, suppose I am writing here programmer. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पेरेंट है. Here we have parent class and this side we have child. So when you store child in parent, the behavior is like parent, not as child, because this is upcasting. Remember we discussed that. तो जो रिटर्न हुआ है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है. So now what you get as a result is an object. तो उसको डायरेक्टली इंटीजर ऐसे एज्यूम मत करना, बिकॉज इट हैज बीन अपकास्टेड इनटू ऑब्जेक्ट. तो कमिंग बैक टू अवर प्रोग्राम, so let's come back over here. So if I write here console dot write line s1 square bracket 0, what this is going to return? डेटा टाइप क्या रिटर्न होगा? ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. हाँ, थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे. So as I told you that this is going to return an object, करेक्ट है? कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप जो कुछ भी पास करते हो, व्हाट डज कंसोल डॉट राइट लाइन कॉल ऑन दैट मेथड? कुछ भी मैंने x पास किया या मैंने e1 पास किया, कंसोल डॉट राइट लाइन उस मेथड पे क्या, कौन सा मेथड कॉल करता है? टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है. रिमेंबर एवरीवन?
We discussed the toString method. So first of all, it will go to the object class, check if the toString method is there or not. And interesting thing is toString method वहां पे क्या है, virtual है. Virtual मतलब actual कौन सा method call होगा? At runtime it will check the object and the object's method will be called. जो सॉरी चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा. तो अब जो भी तुमने पास किया है, फॉर एग्जांपल तुमने इंटीजर पास किया होगा, तो इंटीजर का टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग बीइंग इम्प्लीमेंटेड इंटरनली. कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है, टू स्ट्रिंग कॉल करता है. तुमने क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे टू स्ट्रिंग कॉल होगा, करेक्ट है. बट टू स्ट्रिंग इज इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन ओवरराइडिंग. तो वो वर्चुअल है, तो वो चाइल्ड क्लास को देखता है, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है. सो वी डोंट हैव टू वरी टू मच ओवर हियर. यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सी द आउटपुट एज 23. यहाँ पर आपको 23 दिखाई देगा. अब let's go ahead and write it as 2, sorry 1, and let me have it as 2. तो ये 1 2 3 से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. क्लियर है? लेकिन अगर तुमने लिखा यहाँ पे एज ऐसा, एंड इफ यू ट्राई टू राइट इट लाइक दिस, यहाँ पे एरर आ रहा है. क्यों एरर आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड. वी नीड टू डू द डाउनकास्टिंग, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट वहां डायरेक्टली स्टोर नहीं हो सकता, तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा. सो नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क नाउ. आई होप यू आर ओके विद दिस नाउ. ये एग्जांपल सबको समझ में आया? ये इंडेक्सर का एक सिंपल सा एग्जांपल था, जस्ट टू बी फेमिलियर विद द सिंटैक्स आई एम सेइंग. ओके, ये हो गया गेटर के लिए. नाउ लेट्स राइट इट फॉर द सेटर पार्ट. तो सेट, सेट में क्या आता है, वैल्यू आता है. सो वैल्यू का डेटा टाइप क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट. सो अगेन वी हैव टू यूज दिस वन, इफ दिस. सो ऐसे लिखना पड़ेगा. बट एज यू ऑल नो वैल्यू इज ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अपने को डाउन कास्ट लगेगा. इफ इट इज 1 देन अभी समझ में आ रहा है सबको? ये डाउनकास्टिंग क्यों लगा, पता चला ना. वैल्यू ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था, ऑब्जेक्ट को आप एज में नहीं डाल सकते, इंटीजर में नहीं. सो यू हैव टू डू द डाउनकास्टिंग हियर. सो नाउ इट इज द सेटर पार्ट. सो if I go ahead and write like this, s of 0 is equal to 34 suppose. So I am setting the value using this one, and let's go ahead and check the output. उसके बाद मैं उसको प्रिंट करके चेक करना चाहती हूँ. So can you see this? Now it is showing me 34. So value has been updated by using the indexer here. ये सबको समझ में आ रहा है? Everybody is okay with this part? So now let's create a class. Say, what do you say? College. So college is a collection of students. Can we say like this? So here we are going to have the reference of student. So this is just a reference of an array. Reference of array.
नाउ व्हाट इज क्रिएटेड हियर? क्या बन गया? जो भी आपने साइज दिया था, सो रेफरेंस array of student references is created. Understood? Please remember, note, student object is not created here. I hope everybody is very, very clear about this point. तो अभी मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास अभी एक एम्प्टी एरे है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऑफ साइज वॉट एवर यू हैव मेंशन से 10, तो 10 स्टूडेंट्स का एक एम्प्टी एरे बन गया है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अभी एक्चुअल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है नहीं, सो इट्स एन एम्प्टी एरे फॉर मी. So to indicate it is empty, let's use one integer, suppose index. Okay, एक index नाम का एक वेरिएबल में रखते हैं. So let's have index is equal to 0. Initially the value of index is not 0, so -1. So -1 means it is helping me to indicate that it is empty. Now I am going to have one method called as add student. Suppose तो add student में मुझे क्या करना होगा? देखो लिख के भी दे रहा है वो, पर इसके लिए मुझे इंडेक्स को प्लस प्लस करना चाहिए. सो वी कैन यूज द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. may not be aware of the pre and post increment, तो एक मिनट दे दो, मैं बता देती हूँ. Let's consider that there is a variable I, उसका वैल्यू है suppose 10, and I am writing here say x is equal to plus I. ऐसा अगर हमने लिखा तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, पहले लगाया ना, आई के पहले लगाया, तो पहले इंक्रीमेंट करो 11, देन असाइन, सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल कम आउट टू बी 11, एंड दिस वन आल्सो विल इंक्रीमेंट, आई खुद भी बढ़ गया, तो आई क्या हो गया? 11 हो गया. अगर हमने लिखा आई इज समथिंग लाइक दिस, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट करो, पहले असाइन करो. So in this case, x value will become 10, whereas I value will become 11. ये post increment है, ये pre increment है. Understood? All Python students, this operator is not there in Python. समझ में आ रहा है क्या? मनोज, और कौन है? संजू, वैष्णवी, शिवानी, और कौन है? सॉरी, श्वेता. Everybody is okay? समझ क्लियर हो गया? Okay, so what we are doing here, first we are saying index plus plus and then we are adding student. कितने बार हम लोग स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स कैन वी ऐड स्टूडेंट? डिपेंड्स ऑन साइज. तो समझो मैंने साइज 5 दी थी और 5 बार मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी व्हाट आई एम आस्किंग यू, कहाँ गया? इंडेक्स की वैल्यू थी 0, सॉरी -1 थी, फिर हमने पहली बार ऐड किया. एरे है ना श्रेयस, एरे में इंडेक्स हमने इनिशियलाइज क्या किया? -1. सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर एडिंग द इंडेक्स वैल्यू विल बी 0. Second time when you are adding, it will be 1, then 2, then 3, then 4. Valid index is up to 4 only, correct? 0 to 4 ही जाएगा ना इंडेक्स. Everybody is okay with this? तो अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 आ चुकी है, फिर से आप ऐड कर सकते हो क्या? No. So that is what we need to check here. So let's do a check here. If index is, अभी मैंने साइज नहीं लिया ना, तो साइज भी एक लेना पड़ेगा अपने को. So let me write here this dot size is equal to size. If index is equal to size minus 1, what do you understand by this?
इंडेक्स की वैल्यू साइज अपना 5 है ना, तो 5 - 1 इज 4. इफ इंडेक्स हैज बिकम इक्वल टू साइज -1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? It is full. So here I am saying return false. Why? Operation failed. मैं इंसर्ट नहीं कर सकती ना, स्टैक फुल हो, एरे फुल हो गया. एल्स एल्स में आप इसको सक्सेसफुली इंसर्ट कर सकते हो एंड लेट्स से रिटर्न ट्रू. आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोड? पीपल हु आर फ्रॉम द जावा बैकग्राउंड, अगर मेरा डीएस अटेंड किया होगा तो ये हमने डीएस में किया था, एरे इम्प्लीमेंटेशन. यस. So this part is clear, everyone? Now, ये ऐड स्टूडेंट का कोड समझ में आ रहा है? अब अगर मैं आपसे कहूं पब्लिक, एक और काम करते हैं अभी हम लोग. क्यों वैसे 0 1 2 3 भी क्यों जाना है, समझो. मतलब मुझे वैसे भी नहीं करना है. लेट मी मेक इट इन अ डिफरेंट वे. ये कंसेप्ट तो समझ में आया, चलो ये मैं रहने देती हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए. लेट्स कीप इट फॉर योर रेफरेंस, बट आई विल डू इट इन अनदर वे. एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं. देखो मेरा क्या कहना है, व्हाट आर द वैलिड इंडेक्सेस वी हैव. अपने अपन ने एरे मान लीजिए 5 का बना है, साइज इज 5. सो व्हाट आर द वैलिड इंडेक्सेस दैट वी हैव? 0 to 4. तो मेरी मर्जी में 0 में डालूं या 4 में डालूं, कहीं भी डालूं ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे 0 से ही जाने को क्यों बोल रहे हो? सो लेट्स डू इट नाउ. सो पब्लिक, लेट्स यूज void add student, and here I am passing integer index comma student s. Suppose I am writing like this. So what I am trying to say is all students index is equal to s. बस एक ही चीज मुझे चेक करनी है कि if index is less than size then allow this. नहीं तो मत करो ऐसा. So please tell me everybody, are you able to understand what I am writing here? इसको देखो डायग्राम से मैं बताती हूँ. बट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? बिफोर दिस वन, एवरीबडी इज ओके विद दिस प्रोग्राम? ये हम एकदम लाइन से एकदम रिलीजियसली जा रहे थे कि पहला पहला दूसरे में डालो फिर तीसरे में डालो. अभी हमने बोला वो सब झमेला नहीं चाहिए. हमने इंडेक्स बता दिया ना, मैं इंडेक्स 3 भी पास कर सकती हूँ. सो थर्ड इंडेक्स पे स्टूडेंट को डाल दो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? 0 पे ही क्यों जाना है? आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. और इसको ऐड स्टूडेंट की जगह नाम मैं दे देती हूँ, चलो सेट स्टूडेंट. तो मुझे स्टूडेंट का वैल्यू सेट करना है उस इंडेक्स पे. सो लेट्स हैव अ लुक एट हाउ द मेमोरी एलोकेशन विल बी डन इन दिस केस. So here, first of all, we will be creating the college object. सबसे पहले क्या होगा, कॉलेज का ऑब्जेक्ट बनेगा. So let's say there is an object of college C1 और उसमें मान लीजिए हमने 5 पास किया. Sorry. So here 100 is passed. We passed the constructor. तो अभी क्या क्या है इसके अंदर देखो. We have a reference of student, we have index, we have size. ये सारी चीजें हैं. तो इन 3 चीजों के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा. So there is a memory allocation done for index. इंडेक्स को हमने -1 किया. अभी मैंने तो इंडेक्स का रोल भी खत्म कर दिया है. एंड देन वी हैव साइज. सो साइज लेट्स से यू हैव स्पेसिफाइड एज 5 एंड हियर वी हैव द रेफरेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट. बट अभी उसमें कुछ नहीं है तो ऐसा अज्यूम करो कि वो नल है.
नहीं, कंस्ट्रक्टर में हमने किया ना मेमोरी एलोकेशन, ऑल स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट साइज। तो कंस्ट्रक्टर में जाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर एलोकेटिंग अ मेमोरी ब्लॉक फॉर 5 स्टूडेंट्स। ऐसा, इज इट ओके? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द मेमोरी एलोकेशन डायग्राम हियर? राइट नाउ दीज आर ऑल ब्लैंक, अभी एक भी स्टूडेंट नहीं है। अब हमने सपोज सेट स्टूडेंट कॉल किया, मतलब मैंने मेन मेथड में एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, से स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंड आई पास से 101 अभय एंड 2300 समथिंग लाइक दिस। एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, तो s1 एक स्टूडेंट रहेगा जिसके पास ये सारा डेटा रहेगा। क्या डेटा रहेगा? 101 अभय एंड 2300। देन आई एम राइटिंग C1 जो कॉलेज का ऑब्जेक्ट है, डॉट सेट स्टूडेंट एंड आई पास S1 एज पैरामीटर। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? ये लाइन क्लियर है क्या? तो अब क्या हो रहा है, नया मेथड कॉल हो रहा है। कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? सेट स्टूडेंट कॉल हो रहा है। सो सेट student is being called here. What is being passed? S. S1 is being passed for S, sorry हाँ इंडेक्स नहीं दिया मैंने, समझो मैंने यहाँ पे 3 कॉमा S1 लिया, तो 3 is for index, करेक्ट है? So here S will be created जहाँ पे क्या पास हुआ, S1 that is 200, करेक्ट है? ये ऐसे दिखेगा, और इंडेक्स एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 3 होगी। प्लीज टेल मी एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस मेमोरी एलोकेशन? अब हमने चेक किया, इंडेक्स इज लेस देन साइज, यस, असाइन एस टू द स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इंडेक्स कितना है? 3, तो 0 1 2 3, 3 में हमने क्या असाइन कर दिया? एस। एस के पास कितना है? 200, तो यहाँ 3 में क्या चला गया? 200 चला गया, मतलब ये इसको पॉइंट करेगा। इस टैग फ्रेम का काम खत्म हुआ, सो इट विल बी रिलीज। तो ये ब्लॉक रिलीज हो गया, एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस वाज आल्सो अ लोकल वेरिएबल, सपोज ये भी चला जाने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, वी हैव द ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग ओवर हियर। अंडरस्टूड एवरीवन? हमको मिल गया ना ऑब्जेक्ट अपने पास, तो जहां चाहे वहां इंसर्ट कर सकते हैं ना। गेटिंग इट एवरीवन? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप यू फॉर अंडरस्टूड, नहीं समझ में आया, बाउंसर गया है तो बी फॉर बाउंसर टाइप। सो श्रेयस, श्वेता, श्रुति, ज्ञानेश्वर, मनोज हैव अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट अदर्स? बी फॉर बाउंसर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। संजू को समझ में आ रहा है? सच में संजू, तुम एकदम शांत शांत हो आजकल क्लास में, कुछ पूछते नहीं हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, कंफर्टेबल? नाराज हो हम लोगों से? तुमको लिनक्स से छुड़ा के विंडोज में घुसा दिया। मैम एक बार रिवाइज करना होगा, रिवाइज करना होगा। कौन सा, ये वाला कोड बोल रहे हो वैष्णवी, की पूरा बोल रहे हो पीछे का? तुमको रिवीजन करने पड़े अभी का? ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करूँ क्या फिर से? ओके, yes, let's do it again. Suppose I create an object of college, C1 is equal to new college, and let's pass here 5. This part everybody is understanding? नहीं, मैं एक बार जस्ट रिपीट कर दे रही हूँ। ये जो पार्ट है, let me just erase this whole thing.
Yes, all of you please focus here. When we create the object of college, it will call this constructor, right? कहाँ गया constructor? इधर कॉल हुआ, साइज 5 दिया है हमने, तो ये वाली लाइन को देखो, पहले क्या होगा, ऑल स्टूडेंट के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा और साइज भी इनिशियलाइज होगा. दीज आर द टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द कंस्ट्रक्टर. सो हियर आई एम राइटिंग C1. C1 के पास मान लीजिए एड्रेस आया 100 का. एट 100 मेमोरी ब्लॉक दिस इज क्रिएटेड. ओके, और यहाँ पर क्या होगा, साइज आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ऑल स्टूडेंट्स आएगा. साइज में हमने वैल्यू क्या डाल दी, 5. And for this all student, we are also allocating a new memory block that will be for 5 students. ये clear है क्या सबको? वैष्णवी, is it clear now? संजू, ठीक है ये? मेमोरी एलोकेशन पार्ट समझ में आ रहा है सबको? Okay, so this part is done. ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट. So here we have done this much. तो इसका जो भी एड्रेस होगा, मान लीजिए 200 है, तो यहाँ पे मेरे पास 200 है और ये सब स्टूडेंट्स के रेफरेंसेस हैं. Now we are writing C1 dot set student. Okay, and we have to pass the index. So what I'm saying, let's pass the index as 3 and I'm passing some student object से S1. मतलब मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा student object है which might be at location 300 where I have the age of the student is 20, name of the student is say Ajay and salary is suppose 30,000. ऐसा कुछ एक object है अपने पास. इसका एड्रेस कितना है, 300 है. So when I am writing here 3 comma S1, that means this student, ये set student method कॉल हो रहा है अभी. जब ये set student method कॉल होगा तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स दिख रहे हैं आपको. एक होगा इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, व्हाट वी हैव पास्ड फॉर इंडेक्स इज 3. और दूसरा क्या है, स्टूडेंट एस. एस हमने कितना पास किया, S1 पास किया. S1 के पास कितना है, 300 है. So this means it is 300 like this. Are you all understanding this diagram? ये पास हुआ और ये पास हुआ ना, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई और इसके लिए हमने S1 को पास किया. Is it clear? So if index is less than size, yes it is less than size, no problem. All student index मतलब all student 3, तो 0 1 2 3 यहाँ पे this one is equal to S. तो ये जो S है वो हम इसको असाइन कर रहे हैं. S मतलब S1 कितना है उसके पास, 300, तो ये 300 यहाँ चला जाएगा. So it will be pointing like this. Now the job of this method is over, so we can release this memory block. ये हटा सकते हैं हम लोग. This is also done. चाहिए तो समझो, ये लोकल वेरिएबल होता, अगर ये डिलीट हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now my array is holding this object S1 at index 3. Is it okay everybody? ये समझ में आ रहा है सबको?